Hello everyone, a warm welcome to my YouTube channel Anisha Farhan. Today we are going to starting part 2 of viral disease. वायरल डिजीज के पार्ट में हम लोग आज 6th डिजीज स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको 5 डिजीज जो वायरस से होती हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। तो हम लोग आज सिक्स वायरल डिजीज स्टार्ट करेंगे और 6th वायरल डिजीज कौन सी है हमारी? 6th वायरल डिजीज है हमारी वायरल हेपेटाइटिस। आपने सबसे ज्यादा सुना होगा वायरल हेपेटाइटिस बी। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो किससे पूछे जाते हैं? हेपेटाइटिस बी से पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि हेपेटाइटिस ए भी होता है, बी भी होता है, सी बी, डी बी, ई बी और जी। एफ नहीं होता है, ठीक है, बस इतने ही होते हैं, जी तक होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं it describing into further parts. First part, viral hepatitis A, viral hepatitis B, viral hepatitis D, viral hepatitis C, viral hepatitis E and viral hepatitis G. I hope आपको समझ में आ रहा होगा। Viral hepatitis B is the most dangerous viral hepatitis. Is the most dangerous. That's why mostly asked questions from this disease. Okay? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हेपेटाइटिस बी से ही क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, बिकॉज इट्स द मोस्ट डेंजरस। ओके, नाउ वी आर रीडिंग अबाउट हाउ इट स्प्रेड। हाउ इट स्प्रेड, ये फैलती कैसे है? तो इट स्प्रेड बाय फर्स्टली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। Second is mother to baby. Mother to baby. Mother to baby. It means it genetically. It means क्या हो गया? ये genetically फैलती है ना? Third one is blood transfusion. Blood transfusion. Blood transfusion. First sexual contact. Second genetically, and third one is blood transfusion. And last one is infected syringe. Infected syringe. Okay, if doctor use infected syringe and he get pores in the other persons, that it will affect on the viral hepatitis, which is A, B, D, C, E, G, any other. Okay, now we are discussing more about it. Next point is, what are the symptoms of viral hepatitis? Symptoms means लक्षण. Okay, symptoms means लक्षण. सबसे पहला symptom क्या होता है इसका? What was the first symptom? First symptom is liver cirrhosis. Liver cirrhosis. And what is liver cirrhosis? Liver cirrhosis means inflammation in liver. Inflammation means swelling. Okay, liver cirrhosis means क्या होता है? Inflammation. Inflammation in liver. Inflammation in लीवर। और इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग, सूजन आ जाता है हमारे लीवर के अंदर। ओके, इन्फ्लामेटरी लीवर बन जाता है, ठीक है। और लीवर सिरोसिस क्यों होता है? लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन क्यों आता है? बिकॉज मोर मतलब मैनी पीपल्स आर कंजप्शन ऑफ टू मच अल्कोहल। ओके, they are not surviving more and more time spent in this world. That's why liver cirrhosis occur due to more consumption of alcohol. So do not drink alcohol. Yes, you are drinking red wine also, because red wine helps in digestion. Okay, this is fruitful for our body, not dangerous. So drink red wine, not other brand just like whiskey, rum, beer, वगैरह वगैरह. Okay, so liver cirrhosis means inflammation in liver, swelling.
Next symptom, second symptom, abdominal pain. Abdominal pain. When viral hepatitis is occur in a person, he suffering from abdominal pain. He or she suffering from abdominal pain. It means abdominal pains means back pain. ठीक है, बैक पेन होता है. नेक्स्ट सिम्टम, हाई फीवर. नेक्स्ट सिम्टम, हाई फीवर अप्रोक्स 103 डिग्री सेल्सियस. ओके ओके. Last and most important point, what was that? Last point is that no vaccine is made for hepatitis. हेपेटाइटिस के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है. नो वैक्सीन इज मेड फॉर हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है. दैट्स व्हाई viral hepatitis is too much dangerous. If you are suffering from viral hepatitis, then sure your death is done. So be careful about this disease. Okay, next point, what was the drugs? Next point is that what was the drugs for viral hepatitis? Okay, when you are going for your checkup, then doctor says you are suffering from viral hepatitis, then he or she will give you some drugs. Okay, first drug is sofosbuvir. इसी का ही दूसरा नाम है वालपेटास्विर. ओके. सेकंड, वोक्सिलाप्रिविर. ओके. एंड लास्ट वन इज जेलकाप्रिविर. एंड इसी का ही दूसरा नाम क्या है? व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ दिस ड्रग? पेंटास्विर. ओके. तो ड्रग्स कौन कौन सी हो गई? सॉफोस्बुविर, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को ही हम लोग वालपेटास्विर कहते हैं. सेकंड ड्रग कौन सी देता है? सेकंड ड्रग आपको डॉक्टर देता है वोक्सिलाप्रिविर. और थर्ड ड्रग कौन सी हो गई? जेलसेक्साप्रिविर. ओके, आगे देखते हैं. नेक्स्ट डिजीज, 7th नंबर डिजीज, which was that? SARS, most dangerous, also called first coronavirus. ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को ही हम लोग फर्स्ट कोरोना वायरस भी कहते हैं और इसी को ही हम लोग ओल्ड कोरोना वायरस भी कहते हैं. सबसे पहले what was the full form of that? फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? इसकी फुल फॉर्म होती है सिवियर acute respiratory syndrome. Okay, most important and mostly exams ask this question, what was the full form of SARS? Okay, what was the full form of SARS? Severe acute respiratory syndrome. Okay, next, if you are suffering from SARS, then what test doctor recommended you? First test is that PCR. You are hearing in coronavirus that do PCR test. Okay, PCR का मीन्स क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ओके, PCR की फुल फॉर्म क्या हो गई? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. So if you are suffering from SARS, then doctor recommended which test? PCR test, polymerase chain reaction. If you are suffering from coronavirus also, then doctor recommended also PCR test. Okay, what was the symptoms of that? सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? फर्स्ट सिम्टम्स वही जो कोरोना वायरस के अंदर होते हैं, फीवर,
ड्राई कफ, फीवर, ड्राई कफ, सूखी खांसी होने लग जाती है आपको, हेडक, हेडक, मसल एक, आपकी मसल्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम होती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, आप जब ब्रीदिंग करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही एयर आपके अंदर जाती है तो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलीज होती हैं वो क्या करती हैं, उनके अंदर पस इकट्ठा हो जाता है, पस कलेक्ट होने लग जाता है वहां पे, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट, it is also known as, it is also known as, it is also known as old coronavirus, old coronavirus, okay, also known as old coronavirus. Next point is that where is started, coronavirus where is started, from China, Wuhan city, we all know that. SARS is also started from China in 2002. It also started from, it also started from China in 2002. Okay, where was it started, China, चाइना से स्टार्ट हुआ। कोरोना वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ, चाइना से, वुहान सिटी से। और सार्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो भी चाइना से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट, व्हाई इट स्प्रेड, सॉरी हाउ इट स्प्रेड, ये स्प्रेड कैसे होता है, ये स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इट स्प्रेड, फर्स्टली इट स्प्रेड बाय स्नीजिंग, so do cover your face while you are sneezing, okay. Droplets that enter the air, when you are sneezing, then droplets came out in from your nose and mouth, then please cover it your face. Then droplets that enter the air, when someone entering in the surrounding where are you sneezing, then he or she will also suffering from SARS, okay, if you are suffering from SARS. Next, by touching a contaminated surface, by touching a contaminated surface, by touching a contaminated surface, okay, by touching a contaminated surface. Next आगे, next point, it also spread by saliva, by saliva. When you are in your, when you are in infant stage, your mother is chewing your food, and then it does, and it take in your mouth, okay. That's why if your mother is suffering from SARS and you are eating your mother's food, then you also suffering from SARS, okay. So be aware about it, okay. Next point, by skin to skin contact, by skin to skin contact, by skin to skin contact. If you are a headache, then other person will move your headache, so don't take about it, okay. Hug also, skin to skin contact means headache और hugs, ठीक है। ऐसे टाइम पे आपको किसी के गले भी नहीं लगना है, ओके, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम SARS। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है, 8th डिजीज इज स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू कौन से वायरस से होती है, इट स्प्रेड बाय H1N1 virus, H1N1 virus. What was the symptoms of that? If you are suffering from swine flu, what was the symptoms of that? Firstly, main symptom, calcium is decrease in your body, calcium is decrease in your body.
वाइटनिंग ऑफ हेयर, ओके, बोन पेन होता है, डायरिया होता है हमें, डायरिया, डायरिया मीन्स समझते हो ना, आई होप बताने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट, फटीग्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा थकान रहती है इस टाइम पे, चिल्स, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, चिल्स, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग होती है इस टाइम पे हमें, और हाई फीवर। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं किसके, स्वाइन फ्लू के, जो कि H1N1 वायरस से होता है, ठीक है। इट स्प्रेड बाय, किसके थ्रू फैलता है ये, स्प्रेड बाय पिग्स, किसके थ्रू फैलता है, पिग्स के थ्रू फैलता है, किसके थ्रू फैलता है, पिग्स के थ्रू फैलता है, ओके। आगे देखते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट, 9th number disease, first is swine flu and ninth one is bird flu, bird flu, swine flu virus H1N1 virus, और bird flu virus H5N1 virus, H5N1 virus, which is very 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 important, okay. Next point is attacked on respiratory system, it attack on respiratory system, it attack on respiratory system, okay. Swine flu is causing virus कौन सा होता है, H1N1 वायरस, और बर्ड फ्लू का causing वायरस कौन सा होता है, H5N1 वायरस, ओके। आगे देखते हैं, 10th नंबर की डिजीज कौन सी होती है, इसे ही हम लोग कहते हैं चिकन पॉक्स, क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स, ठीक है। इसे ही लोग क्या कहते हैं, छोटी माता कहते हैं गांव के अंदर, ठीक है। छोटी माता, जब चिकन पॉक्स होता है तो उसे क्या बोलते हैं, छोटी माता निकल आई है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो चिकन पॉक्स होता है, वो कोई माता वो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए वायरस कौन सा होता है, इसके लिए वायरस कौन सा होता है, तो इसके लिए वायरस होता है वेरिसोला जूस्टर वायरस, वेरिसोला जूस्टर वायरस, वेरिसोला जूस्टर वायरस। इट इज हाईली कम्युनिकेबल डिजीज, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज, हाईली कम्युनिकेबल मीन क्या होगा, अगर आपके घर में किसी एक इंसान के वो हो रखा है, चिकन पॉक्स हो रखा है, तो क्या होता है, उसको घर वाले कहते हैं कि तुम बाहर हवा के अंदर मत निकलना, क्योंकि ये हवा से फैलता है, अगर वो हवा के अंदर निकल गए तो बाकी के घर में जितने भी लोग हैं जो उस हवा के कांटेक्ट में आए हैं उन सभी को हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा आपके घर में भी अगर किसी एक को चिकन पॉक्स होता है तो फिर घर के सभी को होने लग जाता है धीरे धीरे, है ना, बिकॉज इट इज हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सिम्टम्स ऑफ दैट, अगर आपके कभी चिकन पॉक्स हुआ है तो आपको सिम्टम्स पता होगा, फीवर, फीवर हुआ है कभी आपके, मेरे तो हुआ है, मैं तो सफरिंग करी हुई हूँ चिकन पॉक्स से। फीवर, ईचिंग स्किन, ईचिंग स्किन, हमारी स्किन पे क्या होती है, बहुत ज्यादा ईचिंग, खुजली चलने लग जाती है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी ईचिंग नहीं करनी होती है, ओके। नेक्स्ट, ब्लिस्टर्स ऑन ऑफ स्किन, ब्लिस्टर्स ऑफ स्किन, जब हमें चिकन पॉक्स होता है तो हमारे स्किन के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर क्या होते हैं, रेड रेड डॉट डॉट होने लग जाते हैं, ठीक है, उन्हीं की वजह से हमें क्या होती है, उन्हीं की वजह से हमें इचिंग होने लग जाती है, ठीक है, क्या होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट डिजीज 11th नंबर की डिजीज कौन सी है, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पहले आपको मैंने पढ़ाया चिकन पॉक्स एंड नेक्स्ट वन डिजीज इज स्मॉल पॉक्स। व्हाट वाज द वायरस ऑफ दिस डिजीज, वायरस इज वेरियोला, वेरियोला जूस्टर वायरस, वेरियोला जूस्टर वायरस, ओके,
both the virus are different, not same. For chickenpox, varicella zoster virus. For smallpox, variola zoster virus. Okay, varicella for chickenpox, and variola for smallpox. C, C is here. C is starting for chickenpox. Here is not seen by C. Okay, so it is smallpox. It's a trick for learning. Okay, it also a highly communicable disease. Highly communicable disease. Next point, what was the symptoms of that? What was the symptoms? Fever, red spots, both the same. Red spots means वही blisters वगैरह वगैरह होते हैं, ठीक है? Next point is smallpox vaccine was discovered by Edward Jenner. Vaccine discovered by Edward Jenner. ओके, वैक्सीन किसने डिस्कवर की स्मॉल पॉक्स की? एडवर्ड जेनर ने. ओके, एडवर्ड जेनर ने. नेक्स्ट पोलियो. नेक्स्ट इज पोलियो. ठीक है, इंडिया इज पोलियो फ्री. नाउ इंडिया इज पोलियो फ्री. Yes, polio is also caused by a virus. Which virus? Poliomyelitis virus. Poliomyelitis virus. Okay, which virus? Poliomyelitis virus. And what was the vector of this polio? हाउस फ्लाई. अपने घर के अंदर जो मक्खी होती है वही इसकी वाहक होता है, वही इसका वेक्टर होता है. ठीक है, when poliomyelitis virus is making the host of house fly, and house fly are seen in many houses, in your houses also. Okay, so be aware about it. Now India is polio free. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वाज द सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? पेन इन बोन्स, हड्डियों के अंदर दर्द. ठीक है, हड्डियों के अंदर दर्द होने लग जाता है. हमारी बोन्स क्या होती हैं? बैंड हो जाती हैं. बैंड बोन्स. ठीक है, हमारी बोन्स क्या हो जाती हैं? बैंड हो जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, it effect on central nervous system. Polio effect on central nervous system. And central nervous system is divided into two parts. Which parts? First one is brain and second one is spinal cord. Central nervous system divided into two parts. First one is brain and second one is spinal cord. Okay, central nervous system is divided into two parts. First one is brain and second one is here spinal cord. Okay, next point, in many exams this point is mostly asked. When we are celebrating polio day, it's on 24th of October. Okay, पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है. पोलियो के लिए वैक्सीन कितनी होती है? पोलियो के लिए वैक्सीन 2 वैक्सीन बनी हुई है. ठीक है, कितनी वैक्सीन बनी हुई है? 2 वैक्सीन बनी हुई है. अब 2 वैक्सीन कौन कौन सी है वो देखते हैं हम लोग. ठीक है, फर्स्ट इज ओपीवी आपने ली होगी, मैंने भी ली है. ओपीवी वैक्सीन आपने ली होगी, मैंने भी ली है.
जब हम लोग पहले वैक्सीन लेने जाते थे तो हमें क्या दी जाती थी? 2 बूंद जिंदगी की। रिमेम्बर, 2 बूंद जिंदगी की। वही क्या है? वही है OPV। इट मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज द फुल फॉर्म ऑफ OPV। OPV. Who discovered OPV? Who discovered OPV? It was discovered by, it was discovered by, discovered by Albert Sabin. Albert Sabin. Okay. Who discovered OPV? It was discovered by Albert Sabin. For polio, 2 vaccines are present. For polio, 2 vaccines are present. First is OPV, and second polio vaccine was discovered by, was second polio vaccine. Second polio vaccine was discovered by, was discovered by Jonas E. Salk. Who discovered? Jonas E. Salk. It was given by a syringe. Syringe, you know, ऐसे syringe. ऐसे देते हैं ना syringe. It's a joke. Okay. Second polio vaccine. Who discovered? Jonas E. Salk. First polio vaccine. Who discovered? Albert Sabin. Second, Jonas E. Salk. Okay. Next disease, 13th number disease, rabies. 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 Rabies is also called hydrophobia. Hydrophobia. Hydrophobia means वाटरिंग फोबिया। पानी से डर लगने लग जाता है जब हमें रेबीज होता है। ठीक है, वो इंसान नहाता भी नहीं है फिर, क्योंकि उसे डर लगता है। वो उसकी गलती नहीं है, उसको किसी कुत्ते ने काट लिया होता है, किसी बिल्ली ने, किसी मंकी ने, किसी बैट ने, इन सभी की वजह से क्या होता है? ये स्प्रेड होता है। ठीक है। सो विच वायरस फॉर दैट? विच वायरस फॉर दैट? इट मीन्स पैथोजन। पैथोजन क्या है इसका? वायरस क्या है इसका? तो इसका वायरस क्या है? रैबिडा वायरस। रैबिडा वायरस। ओके। गांव में कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? गाय को, भैंस को क्या देते हैं? गुड़ खिलाते हैं। जब वो गुड़ खिलाते हैं तो वो गाय भैंस क्या करती है? अपनी जीभ से उनके यहाँ पे चाटने लग जाती है ना? क्या करने लग जाती है? यहाँ पे उनके चाटने लग जाती है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे अब उसके सलाइवा के अंदर ही क्या होते हैं? उसके सलाइवा के अंदर ही ये सब वायरस होते हैं। और वो वायरस फिर लोग अगर हैंड वॉश नहीं करेंगे और उन्हीं हाथों से खाना खा लेंगे, तब उनके अंदर एंटर हो जाते हैं। ओके। सो अगर आप ऐसा काम करते हो तो वॉश योर हैंड प्रॉपरली विद सोप, विद any other substance which you are using. Okay. So pathogen is rhabda virus. ठीक है। वेक्टर। वेक्टर किसकी वजह से होता है? डॉग। डॉग। बैट। बैट मीन्स चमगादड़। मंकी। मंकी बंदर। कैट। इन सभी की वजह से होता है। ठीक है। इफ you are suffering from rabies, then it affect on your nervous system. You are mentally retarded. You are mentally retarded. Yes, it effect on nervous system. Nervous system. डॉक्टर क्या करता है? जब आपको कुत्ता कोई काट लेता है, क्या करता है? वो आपको 14 इंजेक्शन लगाता है। याद है? 14 इंजेक्शन लगाता है ना? अगर कोई भी नहीं भी काटता, अगर उसने से भी अपने पंजे से भी खरोच मार दी आपके, तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाइए। ओके। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हेल्थ के साथ रिस्क नहीं। अगर हेल्थ है तो ही वेल्थ है, यू नो। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, which vaccine doctor recommended you? Anti-rabies vaccine. Anti-rabies vaccine. Anti-rabies vaccine was discovered by whom? Which is discovered by, which is discovered by
लुइस पाश्चर, वो डिस्कवर्ड, लुइस पाश्चर साहब ने क्या किया, इसकी वैक्सीन को डिस्कवर किया ताकि आप मेंटली रिटार्ड होने से बच जाए। अगर आपको कोई भी कुत्ता, कोई भी बिल्ली, कोई भी बंदर, कोई भी बैट, ये सब काट लेता है तो, ठीक है। व्हाट वाज द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट होती है, ठीक है। हमारी बॉडी में से क्या होता है, वाटर का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, हमें बार बार प्यास लगती है, ठीक है। मेंटली रिटार्डेशन, हम लोग पागल हो सकते हैं इसके अंदर, अगर हमें कोई भी कुत्ता काट लेता है तो मेंटली रिटार्डेशन हो जाते हैं हम लोग। ब्रेन इन्फ्लामेशन, हमारे ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, हमारा ब्रेन अंदर ही अंदर सूजने लग जाता है और फिर उसके अंदर पस भर जाता है और फिर हम मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं। हमारे ब्रेन के पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, क्यों, क्योंकि आपका ब्रेन में क्या होती है, ब्रेन में आपके इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती हैं, ठीक है। तो ब्रेन इन्फ्लामेशन होता है इससे, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई होंगी जो कि मैंने आपको पढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर ख़त्म हो गया है, मतलब ये वाले जो सीरीज़ है वायरल डिजीज़ की ख़त्म हो गई है, नहीं, ये ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी वायरल डिजीज़ है, लेकिन मैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ाऊँगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको कैसे लगी वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो please boost my enthusiasm a bit by liking it. Thank you so much. Bye bye and take care of you.